So today we will be going into the details of the digestive system and digestion process. So first of all, I have already told you we divide the digestive system into two parts for our better understanding and for clear understanding. One is the digestive tract or the alimentary canal. The other is the digestive glands. So I have already divided it into the digestive tract is or the alimentary canal is divided into many parts. The first, it starts from the mouth and it ends up in the anus. Mouth, then esophagus, then mouth, then esophagus. In between, nothing is there. After mouth, what is there? Pharynx. Uh-huh. Pharynx. Pharynx, correct. Then esophagus, then stomach, then small intestine, then large intestine, and then after the large intestine, rectum and anus. So in this way, and the digestive glands are the salivary glands, then the gland cells which are present in the stomach, okay, and then the pancreas, and then the liver, and the last one is the intestinal glands, or the juice is called the succus entericus. So this is the bit of information what I have told. Now let us understand it in a better way and in a coordinated way. Coordinated way means how in different parts of our body the digestion process is taking place. Let us start from the mouth. Now in the mouth, what happens? What happens means what are the processes which are taking place? The processes which can take place in the mouth is your one is a mechanical process, that is grinding the food and then mixing the saliva with it to make the food bolus, which can pass to the next part through pharynx into the esophagus. But here we have to know about the different types of teeth also. What are the different types of teeth which we see? क्या क्या है बोलो? मैं अभी सीधा पढ़ा रहा हूँ, कोई complexity नहीं पढ़ा रहा हूँ. What are the 4 different types of teeth? Incisors, canines, molars and premolars. पहले premolars, then molars. Last में Molars. सबसे molar. Okay. First is incisor. What is the function of the incisor? एक दो बच्चा करके बात करो, नहीं तो तुम लोग हम तो समझेंगे हो ही नहीं. Tearing the food. हाँ? Tearing the food. Tearing. Then what is the function of canine? तुम एक एप्पल खाओगे तो कहां से खाओगे? कौन सा दांत से? Incisor. इंसीजर. मांस को ऐसे करके फाड़ोगे तो किससे खाओगे? Canine. कैनाइन. उसके बाद तुम रोटी खा लिए हो, चबाओगे, पहले किससे चबाओगे? Premolar. माने Premolar. ग्राइंड करोगे, चबाओ. प्रीमोलर एंड देन फाइनली Premolar. and then Molar. molar. Don't, Molar. so this is the function of the teeth, and we also must know the dental formula. Dental formula का मतलब होता है कि ये जो पार्ट है इतना आधा का फॉर्मूला लिखना, ऊपर में कितना है, नीचे में कितना है, उसको बोला जाता है डेंटल फॉर्मूला. मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, यू विल राइट इन योर कॉपी द डेंटल फॉर्मूला फॉर द ह्यूमन. फिर भी अगर इंसीजर का बोले तो कैसे लिखेंगे? आई 2/2. कैनाइन के लिए क्या लिखेंगे? सी. सी इस साइड में कितना कैनाइन है? देखो पॉइंटेड जो One. नेल है, ए नेल बोल रहे हैं. One. हाँ? Each. तो One 1/1. हाँ, तो ऊपर में 8 होना चाहिए, नीचे में 8 होना चाहिए, और 8 8 16 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया. इस तरह से पूरा हिसाब इसका बैठ जाएगा. Okay, so up till now I have given you the information. Now
another point, if we don't have the teeth, okay, or if we don't chew the food properly, do we face any problem? We will face any problem. कोई अगर बच्चा खाना नहीं चबाता है, मेरा जैसा ही आदमी है, थप्पड़ भी खाए हैं पिताजी से, जल्दी जल्दी खाने का आदत, तो इसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट है? सर स्टार्च टेक्निकली ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों डाइजेस्ट? स्टार्च नहीं, कोई भी चीज क्यों डाइजेस्ट सर नहीं होती? मैकेनिकल ब्रेकडाउन फूड का नहीं होता है ठीक नहीं से। होने से क्या होगा? उससे क्या होगा? सर वो ब्रेकडाउन फिर नहीं हो पाएगा, वो कॉम्प्लेक्स ही रह जाएगा, सिंपलर नहीं, सब्सटेंस में वैसा ही बात ब्रेकडाउन नहीं है। होगा। हाँ हाँ, तुम जा रहे हो पर पूरा नहीं पहुंचे हो। द पॉइंट इज दिस कि जितना टुकड़ा, जितना फाइनेस्ट टुकड़ा में बटेगा, उतना ही ज्यादा तुम्हारा एंजाइम को सरफेस एरिया मिलेगा। अच्छा, मैं बात शायद समझाने सक नहीं रहा हूं। मान लो एक चौक है, इतना बड़ा चौक तो होता है ना, ये बहुत तरह का चौक होता है, एक ढेला जैसा चौक होता है। तो मान लो ये ऐसा एक चौक है, ठीक, और एक चौक को मैं पाउडर कर दिया, दोनों को पानी में डाल दिया हूं, कौन जल्दी पानी में घुलेगा? पाउडर पाउडर। पाउडर। जिसका जितना सरफेस, एक एंजाइम एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को पकड़ के उसको डाइजेस्ट करता है। अगर हम एक ब्रेड का इतना बड़ा टुकड़ा है, अगर एंजाइम उसको डाइजेस्ट करेगा तो पहले, सबसे पहले क्या, ऊपर वाला लेयर डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद फिर दूसरा वाला लेयर डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद फिर तीसरा वाला लेयर डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद फिर चौथा वाला लेयर डाइजेस्ट करेगा। तो डाइजेशन का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एक समस्या। दूसरा समस्या, हम लोग का सबका पेट में गैस बनता है, हाँ या नहीं बोलो? किसी का गैस निकलता है ऊपर से, किसी का नीचे से, किसी का नहीं निकलता है। तो गैस तो बनता है ना। गया है। सर सुनाई नहीं दे रहा। हुआ? समझ में आया? यस ओके। सर, ओके। आपका आवाज कुछ में कट गया था, इससे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, जब भी कोई फोन आ जाता है कहीं से, तभी वो आवाज कटता है, नहीं तो मेरा बहुत ही पावरफुल, माने ये है, नेट कनेक्शन इज वेरी पावरफुल। कोई फोन आने से ही तुमको सुनाई नहीं देगा, नहीं तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोन तो 3-4 आते ही रहता है। ओके, नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग, हाँ, तो इसलिए खाना को धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से चबाने से अच्छा है। नहीं चबाने से, वो अगर एंजाइम को सफिशिएंट टाइम नहीं मिला और वो रोटी का टुकड़ा रह गया, तो उसमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करने लगेगा। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करने लगेगा, तब उससे क्या होगा, अगर बहुत भद्र गैस निकला तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तुम्हारे पड़ोसी अगल बगल किसी को गंध नहीं मिलेगा। किंतु अगर मूली है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड है, तो वो सब डिफरेंट कंपाउंड्स का डिफरेंट टाइप्स, किसी से H2S निकलता है, किसी से अमोनिया निकलता है, नेट में देखने से तुमको मिल जाएगा। एक एक तरह का खाना से एक एक तरह का गैस सब निकलता है। या तुम्हारे पेट में या रेक्टम में बहुत समय खाना जमा रह जाने से भी गैस बन जाता है, विच इज नॉट ए गुड सिग्नल बेसिकली। हम लोग पहले के समय में, हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो थोड़ा मजाक ही करते थे, किंतु अभी के जमाने में ये मजाक नहीं है। दिस इज गिविंग यू सर्टेन सिग्नल्स अबाउट योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सो यू शुड बी कॉशियस। गैस निकलना नेचुरल है, इसमें पूरा अननेचुरल नहीं है, किंतु विथ सम स्मेल निकलना इज अननेचुरल, एंड व्हाई इट इज हैपनिंग यू मस्ट नो। हो गया?
तो अब जो है मुंह के अंदर एक डाइजेशन होता है। ये तो फिजिकल पार्ट बोल दिया, मैकेनिकल पार्ट बोल दिया, विच इज डन बाय द टेथ। अनदर पार्ट इज देयर, दैट इज द डाइजेशन ऑफ द फूड इन द माउथ, दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वन एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज नोन एज टायलिन। कॉमन नेम बोल रहा हूं, टायलिन, which acts on the starch and breaks it down into maltose। क्या करता है ये जो है, ये क्या करता है, ये तुम्हारा ब्रेक डाउन करता है इसको ना, बॉइल्ड स्टार्च। बॉइल्ड स्टार्च मतलब जैसे रोटी हुआ, चावल हुआ, इसको ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन करके इसको और एक कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम है मैल्टोस, उसमें बदल देता है। हो गया। अब ये मैल्टोस पर एक और एंजाइम है, कम मात्रा में है माउथ के अंदर, उसका नाम है, एंजाइम का नाम है मैल्टेस, जो इस मैल्टोस पर एक्ट करता है और उसको ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज में। एक मैल्टोस मॉलिक्यूल में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रहता है, तो ये ब्रेक डाउन करके एक ग्लूकोज प्लस 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछूंगा कि एक बच्चा बहुत देर तक एक रोटी को चबाते रहा तो उसका टेस्ट कैसा लगेगा? सर स्वीट। वाई? एक्सप्लेन। Because maltose is a simple sugar. नहीं, इसमें मीठा किसका टेस्ट होगा? स्टार्च सर का? रोटी का टेस्ट मीठा है। अच्छा, वेरी गुड। हम लोग ठीक है, मतलब कोई चबाने बात। के बाद मीठा। हाँ हाँ हाँ, सर बहुत देर तक चबाने के बाद जो मीठा टेस्ट आता है वो वाला। हाँ, क्यों आता है? सर क्योंकि स्टार्च तो माल्टोज में टर्न हो जा रहा है ना सैलिवरी एमाइलेज की वजह हाँ। से, इसीलिए। हाँ हाँ हाँ, सैलिवरी एमाइलेज से वो इट इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोस एंड देन तो मीठा हो गया। यस सर, हाँ? क्योंकि माल्टोज तो यस सर, क्योंकि माल्टोज तो एक सिंपल शुगर है। ना, माल्टोस का टेस्ट कैसा है? सर स्वीट। नो, ग्लूकोज का टेस्ट स्वीट है। ग्लूकोज का टेस्ट स्वीट है, माल्टोस का टेस्ट स्वीट नहीं है। हाँ सर माल्टोज हेलो, कंपाउंड है इसीलिए स्वीट आता है। सर माल्टोज 2 ग्लूकोज कंपाउंड है। माल्टोस भी? सर माल्टोज 2 ग्लूकोज कंपाउंड है, मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से फॉर्म होता है। हाँ, किंतु वो उसका स्ट्रक्चर तो स्टार्च भी तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज एन नंबर ऑफ ग्लूकोज से तैयार होता है, किंतु उसका स्टार्च चावल का टेस्ट मीठा है? बोलो। हम जब तक माल्टोज का बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट करते हैं तब तक उसका टेस्ट मीठा नहीं होगा। तुम चेक करो स्टार्च का टेस्ट कैसा है, माल्टोज का टेस्ट कैसा है और ग्लूकोज का टेस्ट कैसा है। बोलो, तुरंत चेक करके बताओ। नेट में देखो, देखो स्टार्च का टेस्ट क्या है। टेस्टलेस है ना, खट्टा है ना मीठा है, क्या है? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम ना रिकॉर्डिंग हो रहा है। कौन? कौन टेस्टलेस? स्टार्च। और मैल्टोज? मैल्टोज सर मीठा है। लिखा हुआ है। हाँ सर, माल्टोज स्वीट दिखा रहा है। हाँ माल्टो स्वीट दिखा रहा है, तो मैं उसीलिए बोला श्योर होने के लिए। यस सर। यस सर, शुगर। माल्टो स्वीट दिखा रहा है, ओके, तब मान लिए तुम्हारा बात। ठीक है, तो 2 स्टेप में कन्वर्ट हो सकता है माल्टोज एंड ग्लूकोज अल्टीमेटली। तो माल्टोज का जो टेस्ट है वो भी स्वीट है, ग्लूकोज का भी टेस्ट कैसा है? स्वीट है। So what will happen if we chew the things for a very long time?
then it will give a slightly उसको क्या बोलेंगे, taste of you can say the glucose. Generally बहुत समय हम लोग जब फूड टेस्ट करते हैं ना, तो उसमें हम लोग माने टेस्ट तो उल्टा से करते हैं. उल्टा से मतलब एक सोल्यूशन लिए जिसमें हम सपोज बॉइल्ड स्टार्च डाल दिए, उसके बाद उसमें एंजाइम डाल दिए, उसके बाद उसको प्रॉपर टेम्परेचर इसमें रख दिए, उसके बाद 1-2 घंटा बाद उसमें फिर से आयोडीन डाल दिए. तो आयोडीन डालने से हम क्या देखेंगे, उसका जो स्टार्च के कारण ब्लू ब्लैक कलर होना था वो नहीं हुआ, विच प्रूव्स दैट स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू समथिंग. ठीक है, मेरा बात समझ में आया? हम लोग भी कभी किंतु ग्लूकोज का टेस्ट नहीं किया, हमेशा वही टेस्ट करते आए हैं. जनरली मेरा भी दिमाग में ये बात कभी घूमा नहीं, अभी पढ़ाते पढ़ाते आया कि हम लोग जनरली किंतु स्टार्च का टेस्ट करते हैं कि एंजाइम है, इसलिए फूड सब्सटेंस यानी कि स्टार्च का ब्रेकडाउन हुआ और वो कन्वर्ट हुआ. तो हम लोग मान ले रहे हैं माल्टोज, माल्टोज से फिर ग्लूकोज मानने नहीं ले रहे हैं, वो हो रहा है, बट इट इज नेवर कंप्लीट. इसीलिए तुमको हल्का मीठा लगेगा, पूरा मीठा नहीं लगेगा. आया बात समझ में? फुल मीठा नहीं लगेगा. तुम एक रोटी को चबा के देखो, फुल मीठा नहीं लगेगा, हल्का हल्का मीठा लगेगा. तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट फेज, दैट इज इन द माउथ. एंड देन वी कम टू द सेकेंड स्टेज of digestion, that is the stomach. In the stomach, the gland cells are present. Yesterday also I have told you. The gland cells are peptic cells, oxyntic cells and mucus secreting cells. Peptic cells produce वर्सिन नाम का एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है. ऑक्सी है वो HCl प्रोड्यूस करता है. एंड म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स म्यूकस सिक्रीट करता है. नाउ द व्हाट इज द, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है, मैं इसी रेफरेंस में पूछ लेता हूं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैस, फंक्शन ऑफ HCl इन द स्टोमक? HCl जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? एसिडिक कंडीशन मेंटेन करता है वेरी गुड. एंजाइम पेप्सिन के लिए. हाँ, दूसरा kills the bacteria good. which are inhaled, which are ingested they- with food. they kill the bacteria, destroy the bacteria. Third, थर्ड के बारे में मैं तुमको बोलना चाहता हूं. तुम्हारा बॉडी किस चीज का बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, माने तुम्हारा जो मांस है किस चीज का है? तुम्हारा जो बॉडी का मांस है ये सब, ये किस चीज से बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, क्या है मेनली? हाँ सर, प्रोटीन. प्रोटीन. वेरी गुड. अब अगर तुम्हारे स्टोमक में एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट है, तो तुम्हारा स्टोमक जो है वो हाफिज क्यों नहीं हो जा रहा है, गायब क्यों नहीं हो जा रहा है? बोलो रे. सर क्योंकि गलत बोलो. म्यूकस बचा हाँ? के रखता है, म्यूकस बचा के रखता है. अच्छा, म्यूकस बचा के रखता है. सर उसके ठीक, जो और? स्टोमक के जो इनर लाइन है उसको बचा के रखता है. हाँ, म्यूकस बचाता है, HCl से भी बचाता है, वो भी ठीक है. और क्या कारण है? और एक इंपॉर्टेंट कारण है. अच्छा, जो सेल में रहता है वो सेल ही क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाता है? जिस सेल से पेप्टिक सेल ही गायब, पेप्टिक सेल भी तो प्रोटीन का ही बना हुआ है ना, तो वो क्यों नहीं गायब हो जाता? सर वो वो तो digest हो inactivated रहता है. एग्जैक्टली, दैट इज द कॉन्सेप्ट. एकदम ठीक बोले कि वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है, और जब वो स्टोमक में सिक्रीट होता है तब HCl उसको क्या करता है? एक्टिवेटेड फॉर्म में ले आता. ठीक है, तो यहां पर बेसिकली तुम्हारा पेप्सिन सिक्रीट होता है, जो कि और भी है, नीचा क्लास में पढ़ोगे, जो कि इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टोन्स. माने पूरा अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हुआ, हाफ वे ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस, आधा तक टूटा.
तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द डियोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। इसमें दो ग्लैंड्स जुड़ा हुआ है, एक है लीवर और दूसरा है पैंक्रियास। दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट मैं देखता हूं प्रिवेल करता है, तुम लोग में नहीं होना चाहिए। क्या लीवर एंजाइम सिक्रीट करता है? तुमको जो आए बोलो, डरो मत, हमको सुविधा होता है पढ़ाने में। तुम जो भी दिल में आएगा बोलोगे तो मुझे बताने में सुविधा होता है। यस सर। हाँ, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। बाइल में जो कि लीवर से सिक्रीट होता है, वो उसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। जितना भी एंजाइम्स पाया जाता है इस जगह का, मतलब डियोडेनम में डाइजेशन के लिए, दैट इज फ्रॉम द पैनक्रियास। तब फिर बाइल का माने इसका काम क्या है, बाइल का फंक्शन क्या है, कोई बोल सकता है? भाई बालीगंज का बच्चा है, बोलो एक It दो जन। emulsifies the fat. वेरी गुड बाबा। और उससे पहले एक पॉइंट बोलना चाहिए भैया, इट मेक्स द मीडियम अल्कलाइन, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, जो बाइल सॉल्ट्स है, ठीक है, दैट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द माइसेलिया। माइसेली मतलब वो फैट के बारे में, सो दैट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द माइसेलीज। तो इसलिए मान लो जैसे मेरा गॉल ब्लैडर हटा दिए, तो अब क्या झमेला क्या होगा, माने ज्यादा रिच खाना संभव नहीं है। और अगर लीवर का भी गड़बड़ी रहेगा तो उसके साथ और झमेला बढ़ जाएगा, ठीक है, ड्राउजी लगेगा। लीवर एक्चुअली क्या बहुत बड़ा ऑर्गन है और बहुत उसको क्या बोलते हैं, चीप केमिस्ट ऑफ द बॉडी। तुम पॉइजन खाओगे तो वो लीवर में ही जाएगा। जब उसको क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, तो फिर लीवर का पीस लेता है, क्योंकि हम लोग कुछ भी खा रहे हैं दैट इज गोइंग इनटू द लीवर। ओके, सो इस तरह से लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लीवर से बाइल सिक्रीट होता है, और बाइल का 3 मेन फंक्शन है। नंबर 1, इट मेक्स द मीडियम अल्कलाइन। नंबर 2, इट emulsifies the fat. Number 3, bile salts helps in the absorption of mice. अब है एक ऑर्गन इससे जुड़ा हुआ है, गॉल ब्लैडर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर? काट के हम लोग हटा दिए तो जिंदा तो है, पढ़ा भी रहे हैं। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या है? तो सर वो बाइल जूस को स्टोर करता है। बाइल जूस को स्टोर करता है। जब खाना तुम्हारा खाते हो तब वो उसको सिक्रीट करता है, और थोड़ा सा बाइल जूस को कॉन्सेंट्रेट भी करता है, ठीक है। तो इसलिए गॉल ब्लैडर इज इंपॉर्टेंट, बट nowadays what is happening, it is becoming a major problem. लीवर एक इतना पोल्यूशन और ये सब होने के कारण हम लोग एक मेजर समस्या में पड़ते जा रहे हैं। नाउ इस जगह पर, मतलब डियोडेनम में जो मेन डाइजेशन होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, जिसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये सब एंजाइम है, एंड दे वर्क ऑन द प्रोटीन्स एंड पेप्टॉन्स एंड कन्वर्ट इट इनटू अमाइनो एसिड, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार है। आया बात समझ में? डियोडेनम में मेन क्या डाइजेशन होता है? इसका मतलब मैं कभी नहीं बोल रहा हूं कि एक भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, एक भी फैट का डाइजेशन नहीं होता है, किंतु मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन द डियोडेनम, and it will be converted into peptides, peptones, etc., and ultimately it will be converted into amino acid, मतलब simplest form of protein. Then next part is the other part of the small intestine, that is duodenum हो गया, बचा 2 पार्ट, jejunum and ileum। इस जगह से जो जूस निकलता है वो जूस
का नाम है सक्कस एंटेरिकस, या उसको बोल सकते हैं इंटेस्टिनल जूस। और इसमें जो ग्लैंड्स है जो इस सिक्रीशन के लिए जिम्मेवार है वो है तुम्हारा ब्रूनर्स ग्लैंड एंड क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल। सबको याद रखने का जरूरत नहीं है, मतलब तुम्हारा दिमाग में रहना चाहिए कि कहीं से निकलता है। इस जगह पर जो पीएच है, इससे पहले का पीएच कितना था? बहुत ज्यादा था, क्योंकि वहां पर डायरेक्टली बाइल सिक्रीट हुआ था और वहां बहुत पीएच को ज्यादा था, दैट इज अराउंड 8। अब जो पीएच है धीरे धीरे ये कितना रेंज में रहेगा? 6.3 से 6.3 से 8.6, मतलब ये भी अल्कलाइन पीएच है। जैसे ही बाइल सिक्रीशन हो गया, पीएच जो है वो बेसिक हो गया। उससे पहले स्टोमक में कैसा था ना? एसिडिक था। हो गया। इस जगह पर जो मैक्सिमम डाइजेशन होगा वो डाइजेशन कैसा होगा ना? वो डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स का। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है आइसोमाल्टेज, माल्टेज, ये सब चीज होगा, और वो सब कार्बोहाइड्रेट को अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फ्रुक्टोज भी मीठा है, ग्लूकोज भी मीठा है, ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और जो कि तुम्हारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इससे पहले डिओडेनम में किस में कन्वर्ट हो गया था? प्रोटीन सब कन्वर्ट हो गया था। मैक्सिमम पार्ट ऑफ द प्रोटीन वाज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड। अब तुम बोलोगे सर आप कहीं पर भी फैट का बात नहीं कर रहे हैं, तो भाई हम फैट को सब जगह पर ही लिखेंगे। फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम है लाइपेज। स्टोमक में भी होता है इंट्रेसेस। ट्रेसेस का मतलब है बहुत बहुत कम क्वांटिटी। एंड देन कहां होता है? उसके बाद होता है डिओडेनम, दैट इज आल्सो टेकिंग प्लेस स्मॉल क्वांटिटी। एंड देन जो इंटेस्टाइन है, जेजुनम एंड इलियम, यहां पर भी फैट डाइजेशन होता है। यू गेट माय पॉइंट? तो इस तरह से यहां पर पूरा डाइजेशन तुम्हारा कंप्लीट होगा। तो डाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? उद्देश्य क्या है? क्यों डाइजेशन हुआ? बोलो। हम रोटी खाए और डाइजेशन किए तो हमको फायदा क्या हुआ? कोई नहीं बोलने सक रहा। अरे सब Sir, the दुखी मत कर। nutrients in the sir the nutrients Nutrients that for? were present. Sir, the nutrients that Nutrient? were present in the sir the हाँ। nutrients that were present in the chapati got absorbed in our blood and are used. ना, हाँ ठीक ठीक ठीक, एब्जॉर्ब। तुम लोग एक स्टेप मैंने सिस्टमेटिकली नहीं जा रहा। द food which we have taken, it is in the complex form. In the process of digestion, we have made it into the simplest form. For example, the carbohydrate is converted into glucose and fructose, that is the simplest form of carbohydrate. The proteins are converted into amino acids, that is the simplest form of protein, and fats are converted into, lipids are converted into fatty acid and glycerol, that is the simplest form. तो इसलिए डाइजेशन का उद्देश्य ये है कि उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में लाया जाए। सिंपल में इसलिए लाया जाए कि इसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन होने सके। इससे पहले ये इतना बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल था, हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो जा नहीं सकता था। हो गया। सो नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब थोड़ा घुमा फिरा कर बात करते हैं, तुम्हारा सोच एक अच्छा हाँ, जो लोग हर्बीवोरस है, एनिमल्स, तो हर्बीवोरस जो एनिमल्स है वो क्या खाता है? जैसे गाय, हिरन क्या खाता है? ग्रास। 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 ग्रास, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ग्रास किस चीज से बना हुआ है? सेल्यूलोज। Cellulose. सेलुलोज। क्या सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट है? नो सर। No, sir. नो सर। तो गाय कैसे उसको डाइजेस्ट करता है?
गाय उसको डाइजेस्ट करने के लिए दो तरह का चीज है, गाय के केस में एक है, दूसरा के केस में दूसरा भी है। सबसे बड़ा चीज जो है कि एंजाइम हम लोग के पास नहीं है। एंजाइम किसके पास है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का? माइक्रोब्स के पास। गाय का क्या है, एक सेपरेट चेम्बर है जिसको रूमेन बोलते हैं, जिसको वो चबाने के बाद वहां पर डाल देता है और वहां पर तुम्हारा माइक्रोब्स प्रेजेंट है जो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाता है। और अगर कोई दूसरा एनिमल है, हर्ब्स खाता है, तो उसको क्या करना होगा, उसका जो इंटेस्टाइन का लेंथ है उसको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा ना घटाना होगा? बढ़ाना हाँ? होगा। लंबा, बढ़ाना क्योंकि टाइम होगा। ज्यादा चाहिए। हाँ, बढ़ाना होगा क्योंकि टाइम ज्यादा चाहिए, सब माइक्रोब्स एक्ट करेगा क्योंकि उसके पास एंजाइम नहीं है। वेयरएज अगर कोई प्रोटीन ईटिंग एनिमल है तो उसका तो एंजाइम सब तकाक से पेनक्रियास से निकल जाएगा, तो उसका उतना लंबा इंटेस्टाइन होने का जरूरत नहीं है। किंतु जो सेलुलोज खाने वाला ऑर्गेनिजम्स है उसका इंटेस्टाइन को थोड़ा समय चाहिए, so that the microbes can act and break it down into the simplest form. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग के लिए। और हम लोग जो सलाद खाते हैं वो एनर्जी बढ़ाने के लिए नहीं, हमारा जो कॉन्स्टिपेशन नहीं हो इसके लिए खाते हैं। कॉन्स्टिपेशन नहीं हो का मतलब सलाद जो खा रहे हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड है और वो हमारे रेक्टम में जाएगा और रेक्टम का मास को बढ़ाएगा, सो दैट कि हम जब माने इसमें जाए तो एक साथ में वो निकले। कम कम जिन लोगों का कॉन्स्टिपेशन होता है उन लोग को लैट्रिन ही नहीं होगा 3-4 दिन 5 दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है आज के डेट में। क्यों आज के डेट में इंपॉर्टेंट है? वी हैव गॉट ए सेडेंटरी, हमेशा बैठे हुए हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो इसलिए ये जो पेट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमेशा इफेक्टेड रहता है। और कपालभाति और इस तरह का जितना एक्सरसाइज है एक्चुअली वो तुम्हारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट होने से क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगा। एक टर्म मैं और यूज किया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नाउ व्हाट इज दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब है एक पाइप है, उसमें अगर ऐसे होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, खाना जो यहां पर था आगे आ गया, फिर ये जगह कॉन्ट्रैक्ट किया तो फिर खाना यहां पर आ गया। तुम देखना कभी उल्टी किए होगे क्या? एक बार नल जैसा उल्टी करते हो? बोलो No, रे, sir. नो सर। No, कैसे sir. करके करते हो? कैसे करके करते हो? तो धीरे धीरे। एक बार वॉक, धीरे धीरे नहीं, ये सब एक्सप्रेशन गलत है। धीरे धीरे क्या, नल का पानी धीरे धीरे गिर रहा है, एक झटका में आता है। वॉक करोगे निकला, फिर और एक वॉक करोगे निकलेगा। Am I right or wrong? यस हमेशा बोलो, क्रिटिसाइज Yes, करो sir. टीचर। हाँ, So, तो एक बार में नहीं निकलता है। इसका कारण क्या है? जो वॉमिटिंग है वो है एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है, जो खाना हम खाए, यहाँ का जो मसल्स है ये सब इनवॉलेंट्री मसल्स है। ये सब ऐसे करके करते करते एक बार खाना खा लिए फिर वो आगे बढ़ाते जाएगा। और जिस आदमी का एज हो जाने से या काम नहीं करने से जिसका ये वाला पार्ट वीक हो जाएगा, हम लोग अभी सब वीक ही है, तो वो लोग को बहुत सारा पेट का प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि पेट एकदम समझ लो शरीर का राजा है, लीवर राजा है, ये सब राजा पार्ट है। हम लोग सोचते हैं दिमाग, क्योंकि यहीं से टॉक्सिन बनेगा, दिमाग बर्बाद कर देगा। तो इसलिए ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इस जगह पर पढ़ने के लिए। तो पता नहीं तुम लोग को कैसा लगता है। ओके, सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एक इशू और मैं बोला बहुत बार किंतु कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, वो है कि एंजाइम वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, ठीक है? तुम ये भी देखे कि एंजाइम ने एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटा मॉलिक्यूल बना दिया ना। हाउ यू डिफाइन एंजाइम? एंजाइम को डिफाइन कैसे करेंगे? कोई बोल सकता है? ठीक है, मैं बोल रहा हूं। एंजाइम एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? भैया जी सब 10 में पढ़ता है, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करो।
एंजाइम इज ए कैटलिस्ट। कोई बोलो, गलत बोलो यार, सुना ही नहीं हो। Sir, the catalyst is the substance which increases the speed of any reaction. ओके, थोड़ा सा गलती हुआ बच्चा लोग, ये गलती भी कॉमन होता है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है विच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेस नहीं बोलना है। क्या बोल रहे हैं? विच चेंजेस, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, विच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। एंजाइम इज ए बायो कैटलिस्ट। दूसरा कैटलिस्ट सब बॉडी के बाहर रहता है, एंजाइम जो है वो क्या है? बायो कैटलिस्ट, मतलब शरीर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैटलिस्ट, इसलिए उसको बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। दूसरा बात, एंजाइम ऑलवेज एक्ट ऑन ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। अब तुम बोलोगे सर सबस्ट्रेट क्या है ना? वो सब्सटेंस जिस पर एंजाइम एक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। वो पर्टिकुलर सब्सटेंस, मान लो मैं बोल रहा हूं मैल्टेज एक एंजाइम है, वो किस पर एक्ट करेगा? मैल्टोज पर। तो मैल्टेज का सबस्ट्रेट क्या हुआ? मैल्टोज। सुक्रोज नहीं हो सकता है। इसका मतलब मैं क्या बोला कि जो एंजाइम है वो हमेशा एक पर्टिकुलर सब्सटेंस पर एक्ट करता है, और उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को, जिस पर एक पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। एग्जांपल, मैल्टेज, पीछे देखो हमेशा सफिक्स लगा रहे हैं एज, और जब कार्बोहाइड्रेट है तो सफिक्स क्या लगा रहे हैं? ओज। मैल्टेज विल एक्ट ऑन मैल्टोज। मैल्टोज इज द सबस्ट्रेट। मैल्टोज क्या है? सबस्ट्रेट है। वाह, बात समझ में आए? तो पहला जो पॉइंट मैं बोला, वो पॉइंट ये बोला कि दिस इज अ बायोकैटलिस्ट। नेक्स्ट वन, आई टोल्ड यू दैट इट ऑलवेज एक्टेड एट ए पर्टिकुलर substrate, then it always act at a particular temperature. अगर टेम्परेचर बदल जाएगा, ठंडा या गर्म, एंजाइम का टेम्परेचर अगर हम लोग बदल लेते हैं, 8 में तुम पढ़े हो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो एंजाइम काम करने नहीं सकेगा। इसीलिए बुखार आने से हमेशा, अगर बुखार बहुत ज्यादा हो गया 104 105, तो हमको हमेशा आदमी को नहला देना चाहिए, क्योंकि once the temperature will rise very high, then what will happen? The enzymes will stop functioning. तो इसीलिए किसी को पानी का पट्टी दो, नहला दो, जैसे भी करके वहां पर हमको टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ता है। You get my point? तो ये जो है क्या बोल रहे थे? हाँ, it always act at a particular temperature, particular pH. Particular pH का मतलब क्या है ना? एसिडिक और बेस। अगर मैं बोल रहा हूं कि पेप्सिन जो है 1.5 pH पर काम करता है, तो वो 1.5 पर ही करेगा। ट्रिप्सिन अगर मैं बोल रहा हूं 8 pH पर काम करेगा, तो 8। तुम थोड़ा भी हेरा फेरी कर दोगे तो वो काम नहीं करने सकेगा। तो एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट विच एक्ट ऑन ए पर्टिकुलर सब्सटेंस at particular temperature and pH. एंजाइम्स का मतलब कभी ये मत सोचना कि ये केवल डाइजेशन में हेल्प करता है। ये शरीर में जितना भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होता है, वो सब बायोकेमिकल एक्टिविटीज में हेल्प करता है। ओके, नाउ कितना टाइम हुआ देखो? 12:08। सर आपने जो अभी समझाया, क्या आप उसे थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? कौन वाला मुझे बोलो समझ तो? में नहीं एंजाइम्स आया। वाला? एंजाइम्स वाला? सर तनीषा है। हाँ, यस सर। सर एंजाइम्स का मतलब क्या है? दे चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन? कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट का मतलब है वो
शरीर के अंदर है। कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी होता है जो हम लोग ऑक्सीजन बनाना बाहर में लैब में सब यूज करते हैं, बट बायो कैटलिस्ट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी से बनता है, वही काम होता है, कभी बाहर भी सिक्रीट करता है। तो दे आर बायो कैटलिस्ट विच एक्ट ऑन ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। जो मैं समझा रहा हूं, पर्टिकुलर सब्सटेंस का मतलब क्या है, सबस्ट्रेट का मतलब क्या है ना। जैसे मान लो एक एंजाइम का नाम है सुक्रेज, ठीक, एक एंजाइम का नाम है सुक्रेज। एज देख के तुम समझ जाओगे कि ये सफिक्स किस बात को डिनोट कर रहा है, ये सफिक्स इस बात को डिनोट कर रहा है कि ये एक एंजाइम। सुक्रेज किस पर एक्ट करेगा? क्या मैल्टोज पर एक्ट कर सकता है? बोलो। स्टार्च पर एक्ट कर सकता है? लैक्टोज पर एक्ट कर सकता है? कभी नहीं। सुक्रेज विल ऑलवेज एक्ट ऑन सुक्रोज, जो कि चीनी में है, वो उसी को डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि एंजाइम्स ऑलवेज एक्ट ऑन ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। एकदम लॉक एंड की फिक्स्ड है कि ये एंजाइम इस केमिकल पर एक्ट करेगा बॉडी के अंदर, ये एंजाइम इस केमिकल के ऊपर एक्ट करेगा। दो और बात है कि टेम्परेचर भी फिक्स्ड होता है एक्ट करने के लिए, और पीएच भी फिक्स्ड होता है, मतलब एसिडिटी और अल्कलिनिटी। अगर कोई एंजाइम 1.5 पीएच पर एक्ट कर रहा है, जैसा कि तुम जानते हो पेप्सिन, तो तुम अगर उस जगह का पीएच को तुम बदल दिए, 1 कर दिए, या तुम उसको अल्कलाइन चीज खा करके उसको 3 कर दिए, तो क्या वो एंजाइम पेप्सिन काम करेगा? नो, इट विल नॉट वर्क। ये काम नहीं करेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? वो काम कभी नहीं करेगा। तो इसलिए तुम्हारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है समझना कि पीएच एक इंपॉर्टेंट चीज है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द टेम्परेचर। अगर मान लो कोई एंजाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करता है, तो वो 37 पर ही काम करेगा। अगर तुम किसी कारण से उसको 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे देते हो, तो वो एंजाइम का जो ड्यूटी है ब्रेक डाउन करना या किसी रिएक्शन को आगे बढ़ाना, वो करने नहीं सकेगा। इसीलिए बुखार होने से, मैं एग्जांपल जो दे रहा था, डॉक्टर लोग हमेशा क्या बोलता है कि हाई फीवर हो जाने से नहला दीजिए, सिर में पट्टी दीजिए, किंतु टेम्परेचर को नीचे लाइए। सर्दी लगे या जो हो वो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि वंस टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो बॉडी सिस्टम कोलैप्स करने लगेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है वो सब काम करना बंद हो जाएगा। पोटाशियम साइनाइड इज अ डेंजरस सब्सटेंस, जिसको जस्ट जीभ में टच करने से आदमी खत्म हो जाता है। उसका काम क्या है? वो रेस्पिरेशन का एक एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। तो पोटाशियम साइनाइड, एलटीटी, तुम लोग जानते हो कि नहीं? क्या कैसा बच्चा है? एलटीटी जानते हो? श्रीलंका में एक टेररिस्ट ग्रुप था, तमिल टेररिस्ट ग्रुप। वो लोग वो गला में एक तो झुला के रखता था, कोई जब भी पुलिस या कोई पकड़ा उसको मुंह में कैप्सूल को खोल देता था, मर जाता था तुरंत। तो ये था उन लोग का टेक्निक। हो गया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? कौन पूछा था? यस सर, आया, पर एक क्वेश्चन है हाँ जरूर। सर। बोलो पीएच जस्ट। टेम्परेचर चेंज होने से सर क्यों नहीं होगा, वो रिएक्ट क्यों नहीं करेगा? अच्छा, पीएच और टेम्परेचर ये होने से रिएक्ट इसलिए नहीं करता है बिकॉज द प्रोटीन्स हैव गॉट ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। यू अंडरस्टैंड? 3 डायमेंशनल का मतलब समझ रहे हो ना? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होता है प्रोटीन। और जैसे ही तुम टेम्परेचर, 3 डायमेंशनल का स्ट्रक्चर का मतलब हम तुमको थोड़ा सा कैसे समझे? अच्छा ठीक है, मैं मान लो एक बाल लिया, बाल को आग में झुलसाया, तो बाल का नेचर रह जाएगा? हाँ या नहीं? नेचर ऑफ ए हेयर विल सर शायद सस्टेन नहीं रहेगा। तो नो उसी सर। तरह से एंजाइम्स आर प्रोटीन्स
and whenever you change the pH or any change you bring about, it's three-dimensional, यही है, three-dimensional structure will change, and when the three-dimensional structure will change, there is a lock and key mechanism with the substrate. तो जैसे ही ये मान लो पहले ऐसे करके फिट हो रहा था, अब जैसे इसको तुम गर्म कर दिया, ये ऐसा हो गया, तब ये क्या हो रहा है, इसमें फिट नहीं करेगा. तो एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो जुड़ना है, दैट इज कैसा है, वो एक लॉक एंड की मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है. हुआ? समझ में आया? कुछ समझाने सका मैं? कुछ बोलता यस ही सर, नहीं समझ हम. में आया. अच्छा, अब मैं थोड़ा अगला इसमें जा रहा हूं, जितना दूर हो जाएगा स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट दिन पकड़ेंगे. रेस्पिरेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, बोलो.